وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور احسن اقدام، رمضان سے قبل چھوٹے تاجروں اور کاروباری افراد کو پیکج دینے کا اعلان۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے بتا دیا۔ سیالکوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے مزید بولیں کہ ناجائز مالی فائدہ اٹھانے والوں کے لیے بھی قانون کا شکنجہ تیار ہو چکا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے بھی چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت کے لیے جلد اسکیم لانے کا اعلان کر دیا۔ اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے خصوصی آرڈیننس لا رہے ہیں۔ غفلت برتنے والے افسران کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی میڈیا سے گفتگو، اپنے محکمے کی تعریف میں بولے، وزارت قانون کی بیٹنگ ایوریج ڈان بریڈمن سے بھی اچھی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری ملکہ بخاری نے کہا، آرڈیننس سے غریب اور متوسط طبقے کو آسانی ہوگی۔ عوام دوست اقدامات ہمیشہ ہی پی ٹی آئی حکومت کی ترجیح ہیں۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، ماہی گیری سے منسلک 3 لاکھ خاندانوں کو روزگار شروع کرنے کی اجازت۔ محکمہ لائف سٹاک اور فشریز نے شکار پر پابندی اٹھا لی۔ ماہی گیر ایس او پی کے تحت سمندر میں مچھلیوں کا شکار کر سکیں گے۔ کراچی فش ہاربر پر سرگرمیاں بھی شروع ہوں گی۔ ادھر سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر مکمل پابندی، تمام استثناء ختم کر دیے گئے۔ سندھ حکومت کا راشن کی تقسیم کے لیے ٹائیگر فورس کو شامل کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کا خیر مقدم، معاون خصوصی عثمان ڈار کا کہنا ہے، موجودہ حالات میں سندھ حکومت سے ایسے ہی فیصلے کی توقع تھی۔ یقین دلاتے ہیں ٹائیگر فورس سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر کام کرے گی۔ پی ٹی آئی کراچی کے رہنماؤں کے سندھ حکومت پر وار، کورونا سے بچاؤ کے اقدامات ناکافی قرار۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا، وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں خوف پھیلا کر آخر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو وکٹ کے دونوں جانب نہیں کھیلنے دیں گے۔ حلیم عادل شیخ بولے، سندھ میں ہزاروں لوگوں کی تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے، یہ کون سی آئسولیشن ہے؟ قیمتوں پر پھر بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ 1 مئی سے پیٹرولیم مصنوعات 15 روپے فی لیٹر سستی ہونے کا امکان۔ اوگرا ذرائع کے مطابق پیٹرول 12 سے 14 روپے تک سستا ہو سکتا ہے۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 14 روپے تک کمی ہونے کا امکان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 20 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ 649، سندھ میں 2355 اور خیبر پختونخوا میں 1137 افراد زیر علاج۔ بلوچستان میں 376 اور اسلام آباد میں 171 مریض موجود۔ 1868 افراد صحت یاب بھی ہو چکے۔ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں مزید طبی عملہ کورونا وائرس کا شکار۔ جناح اسپتال کے وارڈ بوائے اور گنگا رام اسپتال کے ڈسپنسر میں وائرس کی تصدیق۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹر سمیت عملے کے مزید 9 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ ادھر ملتان کی شجاباد جیل میں تعینات ڈاکٹر میں کورونا کی تشخیص۔ نشتر اسپتال کے 6 ڈاکٹرز وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم کو ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ ملاقات میں کہا کہ کسی کو شہریوں کی جیب پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا، عوام کو لوٹنے والوں کی جگہ صرف جیل ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث اصل مسئلہ سفید پوش طبقے کا ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ شیخ رشید کا آرمی چیف کی جانب سے بھیجے گئے 3000 راشن بیگ کلیوں میں تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ سیاسی گفتگو کرتے ہوئے بولے، کوئی بڑا منی لانڈرر اس وقت جیل میں نہیں۔ شہباز شریف کو 1-2 اور پیشیوں پر دم درود کے صدقے چھوڑ دیا جائے گا۔ شہباز شریف کو ایک بار پھر نیب کا بلاوا آ گیا۔ کورونا حفاظتی اقدامات کے ساتھ 22 اپریل کو پیش ہونے کا نوٹس ارسال۔ ذرائع کے مطابق آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی انکوائری کے لیے شہباز شریف سے سوالات کے جوابات انتہائی ضروری ہیں۔
17 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने कोरोना वबा के पेश नजर पेश न होने की प्ली ली थी। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद और ताउन पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। आलमी सतह पर बाहमी ताउन की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी न थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में अमरीकी सफीर पॉल जोन्स को जवाबी खत। अमरीकी सफीर ने शहबाज शरीफ को खत में लिखा था कि कोरोना के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बैरून मुमालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। जनूबी अफ्रीका से 14 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए कराची पहुंच गए। सऊदी अरब से मजीद 226 उम्रा ज़ायरीन भी मुल्तान पहुंचे। तमाम मुसाफिर स्क्रीनिंग के बाद करंतना मुंतकिल। उधर कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। आज लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ताहाल नजीब हारून के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर पाई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आज नजीब हारून से मुलाकात करेंगे। इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की जाएगी। मुलाकात वज़ीर आज़म की हिदायत और पार्टी के पुराने रहनुमाओं की दरख्वास्त पर की जाएगी। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह 30 अप्रैल से रोजाना 1 लाख N95 मास्क बनना शुरू हो जाएंगे। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल का ट्वीट में दावा। कहा, पाकिस्तान में बनने वाले मास्क न सिर्फ मुल्क की जरूरत पूरी करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है 92 न्यूज और मैं हूँ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ रुखशान मीर। नाजरीन, जिंदगी कीमती है, आपकी भी और आपके प्यारों की भी। इसलिए कोरोना लॉकडाउन के दिनों में एक दूसरे से दूर रहें और महफूज रहें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गुरुद्वारा दरबार साहिब को तेज आंधी, खराब मौसम से पहुंचने वाले नुकसान को चंद घंटों बाद ही मरम्मत करके दूर कर दिया गया है। पाकिस्तान में तमाम गुरुद्वारों, अक़लियती मजहबी मकामात की मुकम्मल और बर वक्त मरम्मत, तज़यीन और आराइश होती है। भारत में बाबरी मस्जिद और कई दीगर मजहबी मकामात इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच के तहत तबाह कर दिए गए। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतें मजहबी मुनाफरत और कत्लो गारतगरी का शिकार हैं। भारत में किसी मजहबी मकाम को दोबारा तामीर या फिर जेरे मरम्मत लाया गया। भारत में नस्ल परस्त सोच हिंदुस्तानी शिकस्त और रेख्त का बायस है। क्या ऐसा नहीं कि भारत के अंदर पड़ती दरारें नई रियासतों की सरहदों का पता दे रही हैं? को बता रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। गुरुद्वारा दरबार साहब को तेज आंधी, खराब मौसम से पहुंचने वाले नुकसान को चंद घंटों बाद ही मरम्मत करके दूर कर दिया गया। नुमाइंदा 92 न्यूज फैसल रजा से मजीद बात करते हैं। फैसल रजा, बताएगा इस हवाले से क्या इकदाम उठाए गए? जी बिल्कुल, गुरुद्वारा दरबार साहिब को तेज आंधी और खराब मौसम के बायस गुज़िश्ता रोज जो है वो कुछ नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद जो है वो भारतीय मीडिया ने इंतहाई गलीज और नुक्स प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि गुरुद्वारा के जो नुकसान ज़दा गुंबद थे उनकी मरम्मत करके चंद घंटों बाद ही उन्हें बहाल कर दिया गया था और तमाम जो तज़यीन और आराइश और मरम्मत का काम है उसे मुकम्मल कर लिया गया। इस पर जो है वो कुछ देर कबल हमारी मुतल्लिका हुकाम से बात हुई। उनका कहना था कि पाकिस्तान में तमाम गुरुद्वारों, अक़लीतों, मजहबी मकामात की मुकम्मल और बरवक्त मरम्मत जो है और तज़यीन और आराइश होती है। भारत में बाबरी मस्जिद और कई दीगर मजहबी मकामात जो है वो इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच जो है उसके तहत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। भारत में मुसलमानों समेत अक़लीतें जो है वो मजहबी मुनाफरत और कत्लो गारतगरी का शिकार हैं। भारत में किस मजहबी मकाम को दोबारा तामीर या ज़ेरे मरम्मत लाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। भारत में नस्ल परस्त सोच जो है वो हिंदुस्तानी शिकस्त और रेख का बायस है। क्या ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर पड़ती दरारें जो है वो नई रियासतों की सरहदों का पता दे रही हैं, खास तौर पे उस वक्त जब जो है वो भारत के अंदर मुतनाज़ा शरीयत कानून और मफरूज़ा जम्मू कश्मीर में जो है वो मुसलसल कर्फ्यू, लॉकडाउन और मुवासलाती बंदिश मौजूद है। कोरोना वायरस के हवाले से खास तौर पर जो है वो मुनाफरत फैलाई जा रही है और ऐसी सूरत हाल में भारतीय मीडिया जो है वो बजाय अपने मुल्क के अंदर ध्यान करने के जो है वो एक बज़ाहिर एक आम सा वाक़या है, जो कि एक मौसम बिगड़ती सूरत हाल अपने मुल्क की तरफ तवज्जो देने की बजाय शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंद नजरियात को हवा दी जा रही। फैसल रजा, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के साथ रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी करेंगे और वो सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। स्मगलिंग जखीरा अंदोजी रोकने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। वजीर कानून फरोख नसीम कहते हैं मौजूदा सूरत हाल से किसी को फायदा नहीं उठाने देंगे। जखीरा अंदोजों को समरी ट्रायल के बाद 3 साल सजा होगी। मजीद कहा गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वजारत कानून की बैटिंग एवरेज डॉन ब्रेडमैन से भी अच्छी है। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। के ऑर्डिनेंस में आप समझिए कि जो चीदा शेड्यूल्ड आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर वीट है, शुगर है, फ्लावर है, गुड़ है, घी है और ये सैनिटाइजर्स और ये मास्क और ग्लव्स और इस तरह की मेडिकल इक्विपमेंट्स और दूसरी चीजें हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। तो उसकी अगर कोई होर्डिंग करेगा तो उसके लिए सख्त सजाएं हैं। 3 साल की सजा है, समरी ट्रायल है, 50% फाइन हो जाता है, सामान जब्त हो जाता है। और ये देखें, अब आपको खुद ये सिर्फ लॉ से डर के नहीं करना, लेकिन लॉ है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो रात को एक ऑर्डिनेंस तैयार हुआ है और ये है एंटी स्मगलिंग का ऑर्डिनेंस और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको देख रहा है, वेट कर रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज मेरे ख्याल में ये मंडे ट्यूसडे को ये भी लेजिस्लेट हो जाएगा। वज़ीर कानून फरोख नसीम की गुफ्तगू आपको सुन रहे थे। अभी आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का राशन तकसीम में टाइगर फोर्स को शामिल करने का फैसला सामने आया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार ने अपने एक वीडियो बयान में कहा इन हालात में सिंध हुकूमत की जानिब से ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। को बता रहे हैं राशन तकसीम में टाइगर हुकूमत ने जो फैसला किया है कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के साथ मिलकर सिंध में काम करने का, मैं उनके इस फैसले को खैर मकदम करता हूँ। मुझे सिंध हुकूमत से ऐसे ही फैसले की तवक्को थी और मैं अब सबको यकीन दिलाता हूँ ये टाइगर फोर्स किसी भी सियासत से, किसी सियासी जमात से बालातर होकर कौमी जज्बे के लिए और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए। सिंध हुकूमत का टाइगर फोर्स को रिलीफ सरगर्मियों और राशन की तकसीम में शामिल न करने का फैसला सामने आया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स को रिलीफ ऑपरेशन में शामिल करने के लिए खत लिखा गया था और आपको ये बताएं कि सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ये कहते हैं कि टाइगर फोर्स सियासी है, रिलीफ ऑपरेशन में शामिल नहीं कर सकते। लॉकडाउन से मुतासरा अफराद की मदद गैर सियासी काम है। टाइगर फोर्स को रिलीफ सरगर्मियों में शामिल नहीं करेंगे। राशन की तकसीम और दीगर रिलीफ सरगर्मियों को सियासत से पाक रखना है। इससे मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे वक्कास बाकिर से। वक्कास बताइएगा मजीद क्या कहा गया है उनकी जानिब से। जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक मुरासला अरसाल किया गया था जिसमें वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से हिदायत की गई थी कि जो कोरोना वायरस के रिलीफ ऑपरेशन के लिए टाइगर फोर्स बनाई गई है उसमें सिंध के जो टाइगर फोर्स के रज़ाकार हैं उनको भी सिंध में रिलीफ ऑपरेशन में शामिल किया जाए। ताहम सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो विफाकी हुकूमत की टाइगर फोर्स है उसको सिंध में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल में जो रिलीफ ऑपरेशन जारी है, खुसूसन राशन की तकसीम और जो दीगर रिलीफ सरगर्मियां हैं उसमें टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को शामिल नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत का ये फैसला है कि विफाकी हुकूमत अपने तौर पर जहां चाहे टाइगर फोर्स के रज़ाकारों को इस्तेमाल करे, लेकिन सिंध में उनकी खिदमत हासिल नहीं की जाएंगी। इस ज़िमन में चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जो मुरासला अरसाल किया गया था उस पर सूबाई वज़ीर इम्तियाज शेख जो कि सिंध में रिलीफ सरगर्मियों के निगरां भी हैं, उनका ये कहना है कि टाइगर फोर्स जो बनाई गई है वो मुकम्मल तौर पर सियासी है और रिलीफ सरगर्मियों के लिए किसी भी जो है वो फोर्स या किसी सियासी वकास हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इसी पर मजीद बात करने के लिए वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी हमें ज्वाइन किया है। इम्तियाज शेख साहब, आपसे जानना चाहेंगे आप टाइगर फोर्स को रिलीफ ऑपरेशन में क्यों शामिल नहीं करना चाहते? देखिए जी, अभी तक तो इस तरह का कोई फैसला मेरे इल्म में नहीं है कि टाइगर फोर्स को हम शामिल करें। और दूसरी बात ये कि जो हमारा प्रोग्राम है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, टोटल गैर सियासी बुनियादों पर डिप्टी कमिश्नरों की निगरानी में ये किया जा रहा है। इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि रमजान से कबल वजीर आजम छोटे कारोबारी हजरात के लिए पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं। हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ी है। सियालकोट से देखते हैं हामिद रजा काहलू की रिपोर्ट में।
वजीर आजम की मुआवन खसूसी बराए इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि रमजान से कबल छोटा कारोबार करने वालों के लिए पैकेज ला रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उन सब को जो जॉब चली गई उसके लिए आसानियां पैदा करने के लिए एक पैरेलल प्रोग्राम लेके आए। फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि कोरोना वायरस के टेस्ट करने की सलाहियत रोजाना 20,000 तक ले जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता 472 से उसको कैपेसिटी को बढ़ाते बढ़ाते आज हम 6,000 की कैपेसिटी पे पहुंचे हैं और जिसको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाते हुए हमारा टारगेट है कि इस महीने के एंड तक वो 20,000 की कैपेसिटी तक हम लेके जाएंगे। मुशीर इतलात का कहना था कि कोरोना के खिलाफ जंग में मीडिया का किरदार काबिल तारीफ है। मीडिया के वर्कर्स के तहफ्फुज का वादा पूरा करेंगे। पहले मरहले में हमारी कोशिश है कि हमारे डॉक्टर्स तक वो हेल्थ प्रोटेक्टिव किट्स जो है या पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स जो है वो पहुंचे। तो दूसरे मरहले में हम सहाफी बरादरी जो है उनको ये सिक्योरिटी और सेफ्टी किट्स दें। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा हुकूमत ने सरमायाकारों के साथ साथ फैक्ट्री मुलाजमीन का तहफ्फुज भी करना है। इसके लिए SOPs पर अमल करना होगा। कैमरा टीम के साथ हामिद रजा काहलू, 92 न्यूज, सियालकोट। उधर कराची के ताजिरों ने कारोबार खोलने से मुतल्लिक सिफारिशात और तजावीज़ सिंध हुकूमत को दे दी हैं। वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी, तिब्बी माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की मशावरत से हतमी फैसला किया जाएगा। पहले मरहले में बड़ी मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। मखसूस कारोबार के लिए अलग अलग दिन मुख्तस करने की तजवीज़ है। रमज़ानुल मुबारक के वक्त में तमाम मार्केट्स खोलने से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शिराज, आगाह कीजिएगा, क्या तजवीज़ ज़ेर गौर हैं, क्या फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, ताजिरों की जानिब से मुसलसल जो है ये मुतालबा किया जा रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से जहां हुकूमत ने लॉकडाउन की वजह से तमाम तर मार्केटें बंद कर दी थी, उसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो गई थी और ताजिरों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस हवाले से काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके बाद वजीर आला सिंध ने जो है ताजिरों की मुख्तलिफ तंजीमें उनसे मुलाकात की और आज इसी मुलाकात की वजह से जो है कुछ तजावीज़ जो है वो दी गई हैं छोटे ताजिरों की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ राय बयान की गई है कि मखसूस जो मार्केटें हैं वो मरहला वार खोली जाएं। इसके अलावा तमाम शहर की जो बड़ी बड़ी होलसेल मार्केटें हैं उनको भी दिनों की मुनासबत से ही खोला जाए। तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो भी अपनाने की जो है वो बात की गई है। हैंड सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल और महदूद मुलाजमीन के साथ जो है कारोबार खोलने की जो सिफारिश है वो की गई है और ये तमाम तर तजावीज़ जो हैं वो सिंध हुकूमत को पहुंचा दी गई हैं। लेकिन हतमी फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से ही किया जाएगा, जिसमें आने वाले कुछ दिनों में ये फैसला जो है वो मुतवक्के है और शहर भर की समेत पूरे सिंध भर में जो है वो मार्केटें खोलने का जो फैसला है वो सिंध हुकूमत की जानिब से किया जाएगा आने वाले चंद दिनों में। जी, हतमी फैसला अभी नहीं किया गया, लेकिन यकीनी तौर पर कारोबारी तबके के लिए अच्छी खबर आने वाली है। शिराज अहमद, बहुत शुक्रिया। सिंध में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबे में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 56 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 24 घंटे में 182 नए केसेस सामने आए हैं। अफसोस की बात है 8 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना से आज सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। कोरोना से मजमूई तौर पर मरने वालों की तादाद 56 हो गई है। कल तक हमने 22,938 टेस्ट किए थे। पिछले 24 घंटों में 1520 टेस्ट हुए हैं। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 24,458 हो गई है। कल तक 2,355 केसेस पॉजिटिव थे। पिछले 24 घंटों में 182 केस पॉजिटिव आए हैं, यानी जो हमारे 1520 केसेस हमने किए हैं उनमें से 182 पिछले 24 घंटों में 33 लोग इस बीमारी से तहकीकात में क्या बात सामने आई? जी, इब्तदाई तहकीकात में यही बात सामने आई है कि ये जफरुल्लाह और मतीउल्लाह जो दोनों भाई हैं, इन्होंने इसको जो सईद नामी जो मुदंग लाहौर का रहायशी है इसको दावत पर बुलाया। चूंकि ये इसका दोस्त था जफरुल्लाह का, तो इसके कहने पे ये आ गया, अपनी बीवी और 2 बच्चों समेत आया। तो इन लोगों ने कुछ साबका इनकी रंजिश थी, जिसकी बना पे इन दोनों को पहले मियाँ बीवी को कत्ल किया और उसके बाद जो गिरफ्तार जो मुल्जमान जो दोनों भाई
पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। इनका ये कहना है कि हमने जो दीगर जो 2 बच्चे हैं उनको पहले हम ले गए थे बाहर कि इनको कत्ल नहीं कर रहे, लेकिन बाद में हम जब इस चीज का हमें शुबा हुआ कि इनकी वजह से हम पकड़े जाएंगे तो इन दोनों को भी बेगुवारा के इलाके में ले जाकर दोनों बच्चों को कत्ल करके उनकी जो लाशें हैं वो ठिकाने लगा दी। तब पुलिस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए इन दोनों अफराद को मशकूक जानकर इनको गिरफ्तार किया, जिन्होंने बाद में इकरार जुर्म कर लिया है और इन दोनों के जो गिरफ्तारी के बाद जो तफ्तीश का अमल है हामिद, इकरार जुर्म कर लिया गया है मुल्जिमान की जानिब से। आप हमें आगाह कर रहे थे। नाजरीन, अवाम को पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से मना करने की बजाय कौमी क्रिकेटर्स खुद ही जुर्म करने लगे हैं। कोरोना लॉकडाउन के दौरान कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की गुजरावाला में अपने घर की छत पर भाइयों और दोस्तों के हमरा पतंगबाजी देखी गई है। वीडियो सामने आने पर शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए पुलिस से कौमी बॉलर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद बात करेंगे, ज़ुहैब रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, इस वक्त जो अवाम है वो सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर यही लोग इस तरह के काम करेंगे तो फिर अवाम क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो ट्रेंड सेटर होते हैं और उन्होंने ही जो अपनी आवाम को रोकना भी होता है। जिस तरह ये हमारे सरफराज अहमद से उन्होंने कोरोना वायरस की कैंपेन भी की वहां जाकर। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हसन अली जो वो खुद पतंगबाजी कर रहे हैं अपनी छत पर खड़े होकर, साथ उनके दोस्त भी हैं और कुछ छोटे भाई भी हैं। तो जो शहरी हैं उनका कहना है कि पुलिस जो है वो सेलिब्रिटीज को नहीं पकड़ती है, हम अगर पतंगबाजी करते हैं, हम खिलाफवर्जी करते हैं तो हमें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हसन अली की बरतानिया में कोरोना वायरस से मजीद 888 अफराद हलाक, मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ का मुश्किल हालात में 94वीं सालगिरह इंतहाई सादगी से मनाने का फैसला। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया ने अपनी सालगिरह इंतहाई सादगी से मनाने का फैसला किया है और तोपों की सलामी लेने से भी इनकार कर दिया है। मलका बरतानिया मंगल के रोज 94 साल की हो जाएंगी। NHS का अमला नाकस सहूलियात के सबब मुश्किलात का शिकार है, जिस पर अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि PPE किट की फराहमी के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। बरतानिया में कोरोना वायरस से NHS के हलाक होने वाले स्टाफ की तादाद 50 से तजावज़ कर गई। लंदन में कोरोना वायरस की वजह से 20 बस ड्राइवर समेत ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन के 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुसाफिरों और बस ड्राइवर्स के दरमियान मुनासिब फासला रखने के लिए आइंदा पीर के रोज से लंदन में बसों में सफर मुफ्त कर दिया गया। मुसाफिर बस में सवार होते या उतरते वक्त अक़बी दरवाज़ा इस्तेमाल करेंगे। इसी से मुताल्लिक तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन शदीद मुश्किलात का शिकार, कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर। 90% से जायद बसें खाली सड़कों पर। मुसाफिरों से ड्राइवरों में कोरोना वायरस की मुंतकली के बढ़ते वाकयात से 20 ड्राइवरों समेत 26 अफराद जान से हाथ धो चुके हैं। चेयरमैन ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन मेयर सादिक खान ने बड़ा फैसला करते हुए पहली मरतबा लंदन में पीर से मुफ्त बसें चलाने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओस्टर कार्ड टच करने और ड्राइवर के करीब जाने से रोकने के लिए मुसाफिर पिछले दरवाजे से दाखिल होंगे और इसी दरवाजे से ही बाहर निकलने की इजाजत होगी। मुसाफिरों को कोरोना वायरस एहतियात के तौर पर पोस्टर कार्ड टच करने से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है और अब मुसाफिर लंदन की बसों में नई हदायत आने तक मुफ्त सफर कर सकेंगे। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। दुनिया का दारुल हुकूमत कहलाने वाला लंदन शहर, जहां कभी रौनकों के डेरे होते थे, कारोबार उरूज पर था, बाजार और सड़कें ऐसे हैं कि जैसे यहां कोई बसता ही नहीं। पुररौनक दुनिया कैसे बदली, इस हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन ऐवान रिपोर्ट करेंगे। पुररौनक बाजार में सुनसान सड़कें और बद दुकानें लोगों के मुआशी कत्ल के साथ साथ ज़हनी दबाव का भी सील हो गई। लंदन की रौनक सुनसानी में, खुशी गम में और उम्मीद मायूसी में बदल गई। वस्ती लंदन जहां कभी रात को भी दिन का मंजर होता, चहल पहल और इंसानी समुंदर हर वक्त कहके और खुशियां बखेरता नजर आता, आज रात और दिन का फर्क किए बगैर उल्लू बोलते नजर आते हैं। लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन जो कभी लाखों लोगों को रोजाना एक से दूसरी जगह पहुंचाती थी, आज वीरानी का मंजर पेश कर रही है। 90% से ज्यादा इसके मुसाफिर घरों में मकीद हैं। बसें भी बगैर मुसाफिरों के घूमती नजर आती हैं। जिंदगी लंदन का पंजाब कहलाने वाले इस साउथ हॉल में रौनकें दीदनी होती थी। कहीं पर जलेबियाँ निकल रही हैं, कहीं पर समोसे बन रहे हैं, तो कहीं पर देसी रवायती खानों की महकती खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच ला रही है। लेकिन इस वक्त हर तरफ
लॉकडाउन की सूरत हाल है, शटर बंद हैं, कारोबारी ज़िंदगी ना होने, तालाबंदी से लेकर सिनेमा घरों की बंदिश और थिएटरों से लेकर खेलों के मैदानों तक हर जगह जिंदगी ऐसे जमूत का शिकार जैसे कभी इंसान बसते ही नहीं थे। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला ईस्ट लंदन हो या लंदन का पंजाब यानी कि साउथ हॉल, ऐसी वीरानी देखने को मिलती है कि यकीन नहीं आता। रंग बिरंगे मलबूसात से लेकर अनवाह अक़साम के खानों तक हर तरफ लॉकडाउन और सिर्फ लॉकडाउन ही नजर आ रहा है। आने वाला वक्त क्या दुनिया की रौनकें लुटा पाएगा या फिर दुनिया वाकई ही बदल चुकी है? यही वो सवाल है जो अपने अंदर सुनामी लिए बैठा है। लॉकडाउन के बाद रौनकें लौट आएंगी या दुनिया बदल जाएगी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। ताहम बरतानिया के अंदर तमाम मक्ता फ़िक्र के लोग इन हालात से डट कर मुकाबला कर रहे हैं। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। नाजरीन, कोरोना वायरस के खौफ से लंदन की सड़कें, बाजार और दीगर पब्लिक प्लेसेस वीरान तो हैं, मगर हर साल की तरह बहार का मौसम इस बार भी फूलों और हरे भरे मैदानों की सूरत में दिखाई देने लगा है। खाली सड़कों के किनारों पर मौजूद दरख्तों पर सफ़ेद गुलाबी और सुर्ख फूलों में इस बार उदासी के साथ इंतजार और उम्मीद का मिला जुला तख़य्युल उभरने लगा है। उम्मीदों के इस मौसम का अहवाल जानते हैं लंदन से वसीम काज़मी की रिपोर्ट। ने आन घेरा जब कोरोना वायरस की वजह से बरतानिया भर में लॉकडाउन की घंटी बजी और इस मोहलिक वायरस ने मौत का नंगा नाच खेलना शुरू कर दिया। वक्त की फितरी चाल अपनी रफ्तार पर ही चलती है और मौसम हर साल की तरह अपनी रानाइयों के साथ नमूदार हुआ। लंदन और गिरदोनवाह के कुदरती मनाजिर में इजाफा हो रहा था तो सड़कों और पार्कों समेत झीलों के किनारे मौजूद फूलों ने अपना रंग हर साल की तरह इस बार भी दिखाना शुरू कर दिया। फुटपाथों पर बिखरे सफेद और गुलाबी रंग के फूल कदमों की चाप के मुंतजिर नजर आ रहे हैं। मैदानों में हरी भरी घास को तकते ये खूबसूरत फूल अब शायद उदास और इंतजार में हैं, मगर इस बार खालीपन मुंह चढ़ाए इन चांदनी जैसे चमकते दरख्तों को मायूस कर रहा है। देखने वालों के इंतजार में ये सहरज़दा कर देने वाले अमन पसंद दरख्त कभी किसी अकेले गुजरने वाले को पूछते हुए लगते हैं कि क्या अब यहाँ कोई खेलता हुआ बच्चा शाख हिलाकर खुद पर फूल नहीं फेंकेगा? अगर ऐसा इस बार नहीं होगा तो बहार रुत की रानाइयाँ अगले बरस फिर आएंगी। इंसान ना उम्मीद हो सकता है मगर कुदरत हरगिज नहीं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। रंगों और खुशबुओं के मौसम का आगाज ये उम्मीद दिलाता है कि कोरोना वायरस से निजात और जिंदगी की रौनकें एक बार फिर से बहाल होंगी। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मलेशियन वज़ीर आज़म तांसरी मोहिउद्दीन यासीन के बरवक्त लॉकडाउन के फैसले, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मुनज़्ज़म एहसन इक़दामात और कौम के ज़िम्मेदाराना रवैये की बदौलत आज मलेशिया में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में नुमाया कमी होती हुई नज़र आ रही है। आज सिर्फ 54 नए मरीज़ सामने आए, जो कि लॉकडाउन के दिनों में अब तक की सबसे कम तादाद है। तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, वहीं मलेशिया से हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। वायरस से मुतासर अफराद में न सिर्फ नुमाया कमी देखी जा रही है, बल्कि जहाने फानी से कूच करने वालों की तादाद भी न होने के बराबर है। मलेशिया की वजारत सेहत के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मलेशिया में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 5350 है, जिनमें से 3102 सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से फारिग कर दिए गए हैं, जबकि 2115 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तादाद 38 तक पहुंच गई। मलेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 28 अप्रैल तक जारी रहने वाला लॉकडाउन तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता 32 दिनों से तमाम दफातर, कारोबारी इदारे, सैरगाहें, शॉपिंग मॉल्स, मसाजिद और दीगर इबादत गाहें बिल्कुल बंद हैं। जरूरी एशियाए खोरोनोश और फार्मेसीज हुकूमत के नाफिज करदा महदूद मुकर्ररा औकात के लिए खोली जाती हैं। मलेशिया में बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानी मेहनतकश और उनके अहले खाना को कम्युनिटी के मुखय्यर हज़रात की तरफ से राशन
تو مہیا کیا جا رہا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی کسی حد تک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر سطح پر کاروبار مکمل بند ہو جانے کی وجہ سے مخیر حضرات کو بھی شدید متکشوں نے وزیر اعظم عمران خان سے درخواست کی ہے کہ وہ حکومت ملائیشیا سے بات کر کے انہیں قید اور جرمانے کے مشکل مراحل سے بچا کر وطن واپسی کے انتظامات کریں۔ ملائیشیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن ہوتی ہوئی کمی یقیناً امید افزا پیغام دے رہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو کرونا وائرس سے پاک، آزاد، صحت افزا اور بابرکت صبح نوروز جلد عطا فرمائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔ ناظرین، امریکہ میں کرونا وائرس کے خلاف شعور کو اجاگر کرنے کی مہم کے دوران نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے، اور بل بورڈز کے ذریعے وبا کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں واشنگٹن سے خرم شہزاد کے رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے شعور اجاگر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ان بورڈز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات لکھے گئے ہیں کہ وبا میں ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے، جب کوئی وبا پھیلے تو وہاں نہ جاؤ اور نہ ہی وبا کے علاقے سے باہر آؤ۔ یہ بل بورڈز شاہراہوں پر لگے ہیں اور روزانہ ہزاروں مسافر ان کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ گینپس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سبیل احمد نے کہا کہ اسلام کے بارے میں اکثر غیر مسلموں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں اور شکوک و شبہات کے ساتھ اسلام کے بارے میں تعصب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ غلط فہمیوں کا جواب دیا گیا ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ اور ابھی افسوسناک خبر، نیو جرسی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز شخصیت اور پاکستانیز فار امریکہ کے بانی اور صدر شفقت رسول خان کرونا وائرس کے باعث قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 75 سال تھی۔ شفقت رسول کے دیرینہ دوست اور پاکستانیز فار امریکہ کے سینئر نائب صدر امتیاز چودھری نے شفقت خان کے انتقال کی اطلاع دی۔ مرحوم طویل عرصے سے جرسی سٹی میں مقیم تھے اور ان کی تنظیم نے جرسی سٹی ہال میں پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا آغاز کیا تھا۔ شفقت خان چند ہفتے پہلے کورونا کا شکار ہوئے تھے، جس کے باعث ان کی موت واقع ہوئی۔ مرحوم نے پسماندگان میں بیوہ، ایک بیٹی اور 2 بیٹے سوگوار چھوڑے۔ ان کے دیرینہ دوست امتیاز چودھری نے ان کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے مرحوم کی نیو جرسی میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ ناظرین، کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث پہلی بار آن لائن انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی، جس کا اہتمام تحریک کشمیر برطانیہ نے کیا، اور اس میں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ تحریک کشمیر برطانیہ نے برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار آن لائن ویڈیو کانفرنس کشمیر کی موجودہ صورتحال پر منعقد کی، جس میں صدر آزاد جموں کشمیر نے خصوصی خطاب کیا۔ اس کانفرنس کی صدارت صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی نے کی۔ برطانیہ کے 25 سے زائد شہروں سے تحریک کشمیر برطانیہ کے عہدیداران نے اس کانفرنس میں شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ جسٹس فار کشمیر کیمپین کو کامیاب کرنے کے لیے اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اس ای میل کیمپین کا آغاز کیا جائے گا۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، جبکہ گزشتہ 9 ماہ سے کشمیری اس صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اب دنیا کو لاک ڈاؤن کا مطلب آسانی سے سمجھ آ جانا چاہیے۔ I thank Mr. Fahim Kiani for organizing this timely video conference on Kashmir. I pay tribute to your leadership. First, my heart goes out to the brave and proud people of the United Kingdom who are fighting the coronavirus pandemic with courage and resilience. We have a special connection with the United Kingdom because of history and the presence of the large diaspora community there. Your pain is our pain. Your suffering is our suffering. We are confident that you will be able to successfully beat back this menace. In Azad Kashmir, we too are combating the deadly virus. Thankfully, so far, the incidence is low and there have been no deaths. We have made full preparations for an effective response. اس کیمپین میں برطانوی ایم پیز، اقوام متحدہ، عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کے اداروں کو ای میلز کی جائیں گی اور بھارت کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب کیا جائے گا۔ خبر یہ بھی ہے کہ ترکی کے رکن پارلیمنٹ علی شاہین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا دشمن ترکی کا دشمن ہے۔ ترکی میں کوئی طالبان رہنما یا پاکستان مخالف تنظیم کا کوئی وجود نہیں۔ ترک پارلیمنٹیرین علی شاہین نے اپنے ٹویٹ میں ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ مفرور طالبان رہنما احسان اللہ احسان ترکی کی سرزمین میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان کا دشمن ترکی کا دشمن ہے اور ترکی کی سرزمین پر ایسے عناصر کو کسی صورت پناہ نہیں مل سکتی جو ہمارے انتہائی قریبی دوست ملک
ملک پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ علی شاہین اردو زبان جاننے والے پہلے ترک پارلیمنٹیرین ہیں اور پاکستان دوستی کے حوالے سے ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پھیلے خوف میں دنیا خوشی کے لمحات کو ترس گئی۔ سماجی فاصلوں کی وجہ سے لوگوں کا ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہونا اب خواب بن گیا ہے۔ امریکی ریاست ہوائی میں پارکنگ لاٹ میں شادی کی تقریب ہوئی جس میں احتیاطی تدابیر کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ میرج بیورو نہیں بلکہ ہاکی اسٹیڈیم کا پارکنگ لاٹ ہے جہاں دو دل مل رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے پہلے انہیں شادی کی اجازت نہیں دی گئی تھی، بعد میں ان کو ہاکی اسٹیڈیم کی پارکنگ میں قائم عارضی میرج آفس میں شادی کے لیے بلایا گیا۔ واکی ٹاکی کے ذریعے دولہا دلہن سے قبول و ایجاب کرایا گیا، شادی کا سرٹیفکیٹ اور گلدستہ پیش کیا گیا۔ شادی شدہ جوڑے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، حالانکہ وہاں ان کی خوشیوں میں شامل ہونے والا کوئی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر ان کو مبارکبادیں دی گئیں، سماجی فاصلوں کے تمام تقاضے پورے کیے گئے، لیکن اس انوکھی شادی کو سوشل میڈیا پر خوب سراہا جا رہا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔